میرے عزیز دوستو، ذوالحجہ کے یہ مبارک ایام اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ ہم پر سایہ پھاغن ہیں۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کی گئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی عام دنوں کے جہاد سے زیادہ افضل اور اللہ کو محبوب ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے اپنے دل کی آواز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے آپ کا دل ایک عجیب سے بوجھ تلے دبا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ ٹی وی اسکرین پر حاجیوں کے قافلے دیکھتے ہیں، جب کعبہ کا غلاف نظر آتا ہے، جب لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں، تو آپ کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کے سینے میں ایک درد بھری ٹیس اٹھتی ہے کہ اے اللہ، میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ میرے پاس اسباب کیوں نہیں تھے؟ میں تیرے گھر کی ان گلیوں میں کیوں نہیں ہوں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے دوستو، اپنے آنسو پونچھ لیجئے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنیے۔ آپ کا یہ تڑپنا، آپ کا یہ اداس ہونا اور آپ کا ان نشستوں سے جڑنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کائنات کے اس شہنشاہ کے دربار میں سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کا بلاوا جاری کر دیا ہے، اسی لیے اس نے آپ کے دل کو تڑپایا ہے۔ جس کو اللہ نے نوازنا نہ ہو، اس کے دل میں مکے کی یاد بھی پیدا نہیں ہوتی۔ دوستو، ذوالحجہ کی یہ جو راتیں اس وقت گزر رہی ہیں، ان کے بارے میں اولیاء اللہ اور معرفت کے شہ سوال فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب قدرت اپنے مانگنے والوں کو عطا کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ہم دنیا کی نظر میں شاید ایک عام انسان ہوں، شاید ہم پریشان حال ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان راتوں میں مصلی پر بیٹھنے والا ہر شخص کائنات کا امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ آج ذوالحجہ کی ان مبارک راتوں کا وہ پراسرار راز کھلنے جا رہا ہے جو آپ کی زندگی کی تمام بے چینیاں ختم کر دے گا۔ آج ہم اس الوہیت کے کھچاؤ کی حقیقت جانیں گے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وہاں جانے کا ٹکٹ نہیں تھا، لیکن جن کی روحیں اس وقت کعبے کے گرد طواف کر رہی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک ایٹم بم ثابت ہوگی جو برسوں سے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اپنی روح کو بیدار کر لیجئے اور اپنے یقین کو ہمالیہ سے بھی اونچا کر لیجئے، کیونکہ آج ہم جس حقیقت اور جس نسبت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سینے سے مستقبل کا ہر خوف نکال کر وہاں اللہ کے بھروسے کا وہ سکون بھر دے گی جس کے بعد کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ جڑے رہیے گا اس نشست کے آخر تک، کیونکہ اب وہ کنجی آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کے نصیب جگانے کے لیے کافی ہے۔ تو صاحبو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بوجھ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تڑپ کیوں ہے اور اس کا مکہ میں ہونے والے حج سے کیا تعلق ہے؟ دوستو، اولیاء اللہ، عارفین اور مشائخ عظام نے اس کیفیت کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پراسرار نام دیا ہے۔ وہ اسے الوہیت کا کھچاؤ کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا کہ اس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں لاکھوں دیوانے جمع ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے اتر رہی ہیں، وہاں لبیک کی وہ صدا گونج رہی ہے جو عرش کے پائے ہلا دیتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ قریب آ رہا ہے، مکہ کی اس وادی میں اللہ کی رحمت کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں نور کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا ہے جس کی تپش پوری کائنات میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک سمرانی نکتہ سمجھیے۔ جس طرح جب سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں تو دور ساحل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس کی نمی اور اس کی ہوا محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب مکہ میں اللہ کی رحمت کا سمندر معجزن ہوتا ہے تو اس کی لہریں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ مشائخ چشت فرماتے ہیں کہ مکہ کائنات کا دل ہے اور باقی دنیا اس کا جسم ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ آج مکہ میں حاجی عرفات اور منی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی تڑپ اور ان کی پکار کی وجہ سے وہاں رحمت کی تپش پیدا ہو چکی ہے، اور وہ تپش یہاں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان عاشقوں کے دلوں کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے جن کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذوالحجہ کی ان مبارک راتوں میں اگر آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کو بلا وجہ رونا آ رہا ہے، اگر آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی ہے، تو یاد رکھیے یہ کوئی نفسیاتی بیماری یا ڈپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ غیبی صفائی کا عمل ہے۔
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو ان 10 دنوں میں کوئی بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کے برتن کو صاف کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو کسی قیمتی برتن میں خالص دودھ یا شہد ڈالنا ہو لیکن اس برتن میں پہلے سے گندگی لگی ہو تو کیا آپ اس میں وہ قیمتی چیز ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ پہلے اس برتن کو رگڑ کر صاف کریں گے، اسے دھوئیں گے، اسے مانجیں گے۔ اس صفائی کے دوران اس برتن پر رگڑ بھی لگتی ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن مقصد اسے پاک کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذو الحجہ کے ان دنوں میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے دلوں کو رگڑ رہا ہے جنہیں وہ عید کے دن اور عرفہ کی شام نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جو آپ کو اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، وہ دراصل آپ کے گناہوں کی وہ کالک ہے جو اللہ کی رحمت کی تپش سے پگھل کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ آپ کے دل کے برتن کو صاف کر رہا ہے تاکہ جب عرفہ کی شام آئے، جب وہ الوہیت کا کھچاؤ اپنی انتہا پر پہنچے تو آپ کا دل اتنا پاکیزہ ہو چکا ہو کہ اللہ اس میں اپنی معرفت اور اپنے عشق کا نور بھر دے۔ صوفیہ کا فیضان یہی ہے کہ میاں جب محبوب کی یاد تمہیں تڑپانے لگے اور تمہارا دل بوجھل ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اس نے تمہیں یاد کر لیا ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ دوستو، یہ اداسی ایک انعام ہے، یہ بوجھ رب کا کرم ہے۔ دنیا کے لوگ جب اداس ہوتے ہیں تو وہ موسیقی سنتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کا عاشق جب ان راتوں میں اداس ہوتا ہے تو وہ مصلی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اداسی دراصل اللہ کی طرف سے ایک خفی دعوت نامہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرا جسم مکہ نہیں پہنچ سکا تو کوئی بات نہیں، تیری روح تو میرے قبضے میں ہے، میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہی وہ الوہیت کا کھچاؤ ہے جس کی وجہ سے انسان کو ان دنوں میں دنیا کی ہر لذت پھیکی لگنے لگتی ہے۔ اسے نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ سونے میں سکون ملتا ہے۔ اس کی روح صرف ایک ہی چیز کی پیاسی ہوتی ہے اور وہ ہے وصل الہی۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اس کھچاؤ کو پہچان لے اور اپنی تمام تر تدبیریں چھوڑ کر اس کھچاؤ کے حوالے ہو جائے۔ عزیز سامعین، آج کی یہ نشست پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے کعبے کی تڑپ رکھنے والو، اپنی اس کیفیت کی قدر کرو۔ یہ بوجھ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ آنسو تمہاری بخشش کا پروانہ ہے۔ اللہ ان راتوں میں جج بن کر تمہارے گناہ نہیں دیکھ رہا، وہ تو ودود بن کر تمہاری تڑپ دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ان راتوں میں ٹوٹ کر اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں وہ عطا کرے جو اب تک اس نے کسی کو نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، واللہ یہی سچ ہے اللہ کا کہ وہ چاہتا ہے کہ تم ان راتوں میں ٹوٹ کر اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں وہ عطا کرے جو اس نے اب تک کسی کو نہیں دیا۔ لیکن اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ ہمیں اس طرح اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جب وہ ہمارے دلوں کو صاف کر رہا ہے، تو پھر وہ کون سا خفیہ کوڈ ہے، وہ کون سا اسم اعظم ہے جسے اولیاء اللہ ان راتوں میں پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے؟ وہ کیا راز ہے کہ جو اللہ کو جج نہیں بلکہ یار بنا دیتا ہے؟ انشاءاللہ اپنی گفتگو کے بالکل اگلے اور سب سے زیادہ کرشماتی حصے میں ہم اولیاء کے اس تاریخی قول کی حقیقت جانیں گے کہ اللہ ان دنوں میں یار بن کر کیسے نوازتا ہے، اور ہم اس ایٹم بم وظیفے کی طرف بڑھیں گے جو بند نصیبوں کو جگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو جڑے رہیے گا اس روحانی سفر کے ساتھ، کیونکہ اگلا حصہ آپ کو وہ چابی دینے والا ہے جو غیب کے دروازے کھولتی ہے۔ جی جناب سیالوی صاحب۔ عالیجہ شکریہ۔ تو بھائیوں، اب ایک بہت ہی خوبصورت اور لرزہ خیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، جب میں تڑپتا ہوں، جب میں تیری یاد میں روتا ہوں تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس ہستی کی چوکھٹ پر چلنا ہوگا جنہیں بر صغیر میں بادشاہوں کا بادشاہ اور سید حجویر کہا جاتا ہے، یعنی حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب میں بندگی کے مختلف رنگ بیان کرتے ہوئے ایک ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں جو آج کے اس دور میں ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سب سے بڑی مرہم ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ اور ان کا وہ تاریخی قول یاد رکھیے جو اللہ والوں کے سینوں کا راز رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں، یہ جو ذی الحجہ کے مبارک دن اور راتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت سے جج سمجھ کر مانگنے کے نہیں ہیں بلکہ اسے یار سمجھ کر پکارنے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس ایک جملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھیے
इसमें कायनात की सबसे बड़ी तसल्ली छुपी हुई है। जज और यार के दरमियान क्या फर्क होता है, जरा इस पर गौर करें। जब आप किसी अदालत में जज के सामने खड़े होते हैं तो वहां कानून चलता है, वहां इंसाफ चलता है। जज आपकी फाइल देखता है, वो आपके गुनाहों का हिसाब मांगता है, वो आपकी एक एक गलती पर जराह करता है, वो देखता है कि आप किस सजा के हकदार हैं। अगर हम इन 10 दिनों में अल्लाह को सिर्फ एक जज यानी मुंसिफ समझकर पुकारेंगे तो फिर हमें डरना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल तो गुनाहों से भरी पड़ी है। हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जो उसके अदल के तराजू पर पूरी उतर सके। लेकिन दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिलहिज्जा के इन अय्याम में अल्लाह ताला अपनी सिफत अदल को पसे पर्दा रख देता है और अपनी सिफत वदूद यानी बहुत मोहब्बत करने वाला को जाहिर फरमा देता है। इन रातों में वो रब अपने बंदों के लिए जज नहीं रहता, बल्कि वो उनका यार बन जाता है। और यार का तरीका क्या है? यार कभी हिसाब नहीं मांगता, यार कभी फाइलें नहीं खोलता, यार कभी गुनाह नहीं गिनता। यार तो बस जब अपने यार को तड़पता हुआ देखता है, जब उसे अपनी याद में रोता हुआ पाता है, तो वो उसे सीने से लगा लेता है और उसकी झोली को बिना मांगे भर देता है। दोस्तों, यही वो सियालवी टच है जो हमें पीर सियाल लजपाल हजरत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से मिला है। पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान यही है कि फ़कीर की महराज ये है कि वो अल्लाह के साथ यारी निभाए। भाइयों, जब आप इन मुबारक रातों में मुसल्ले पर बैठो तो अल्लाह से इस तरह बातें करो जैसे कोई अपने किसी बहुत ही करीबी और पुराने दोस्त से करता है। उसे अपना हाल सुनाओ, उसे अपने दुख दिखाओ, उसे वो मजबूरियां बताओ जो तुम दुनिया को नहीं बता सकते। अल्लाह इन रातों में अपने गुनाहगार बंदों के साथ भी वो यारी निभाता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सोचिए कितना बड़ा ये रूहानी इनाम है। हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, लेकिन इन 10 दिनों में अल्लाह ने हमें ये लाइसेंस दे दिया है कि ऐ मेरे बंदो, आ जाओ मेरे करीब। मैं तुम्हारा हिसाब लेने के मूड में नहीं हूं, मैं तो तुम्हें नवाजने के मूड में हूं। मैं तुम्हारी लग़्ज़िशों को दरगुजर करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे बिखरे हुए नसीबों को समेटने के लिए तैयार हूं। हुजूर ताजदार गोलरा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हमें ये मारिफत मिली है कि अल्लाह की इस यारी का मरकज़ मदीना मुनव्वरा की वो हस्ती हैं जिन्हें हबीबुल्लाह यानी अल्लाह का यार कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर इन रातों में पुकारते हो तो फिर अल्लाह की गैरत मोहब्बत जोश में आती है और वो अपने यार के ग़ुलामों को खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे प्यारे भाइयों, आज की ये नशिस्त हमें ये पैगाम दे रही है कि मायूसी को तलाक दे दें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं तो याद रखें कि आपका यार अल्लाह आपका मुंतज़िर है। जज हिसाब मांगता है, लेकिन यार सिर्फ नवाज देता है। इन रातों में वो रब सिर्फ ये देख रहा है कि कौन है जो दुनिया के तमाम झूठे सहारों को ठुकलाकर, तमाम महकमों और तमाम जजों से नज़रें हटाकर खालिसतन उसकी यारी पर भरोसा करके उसके दर पर आ बैठा है। जो शख्स इन अय्याम में अल्लाह को अपना यार बना लेता है, फिर दुनिया का कोई गम उसे उदास नहीं कर सकता। फिर उसे रिस्क की तंगी का खौफ नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा यार अर-रज़्ज़ाक़ है। उसे दुश्मनों का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा यार अल-क़वी है। उसे तन्हाई का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो महसूस करता है कि मेरा यार अस-समीउ और अल-बसीर मेरे साथ है। आज सियालवी टीवी के नाजरीन के लिए इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक ये है, अल्लाह से डरना छोड़ दें, यानी इस माना में कि वो सज़ा देगा, और अल्लाह से हया करना और उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें, यानी इस माना में कि वो मेरा यार है। ख़ास तौर पर ज़िलहिज्जा की इन मुबारक रातों में अपनी नमाज़ों और तस्बीहात में इस यार के साथ वो रिश्ता उस्तवार करें जो कभी नहीं टूटता। अज़ीज़ सामईन, हमने अल्लाह की इस यारी का राज को समझ लिया। हमने औलिया अल्लाह का वो मुस्तनद फरमान भी सुन लिया जो रूह को सुकून देता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें इस यारी को निभाने के लिए वो ख़ास कलिमात हासिल करने हैं जिन्हें पढ़ते ही अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। वो कौन सा इस्म आज़म है जो इन 10 दिनों की किसी भी रात में, चाहे वो आज की रात हो या आने वाली कोई भी मुबारक घड़ी, अगर 313 बार पढ़ लिया जाए तो वो नामुमकिन हाजतों को मुमकिन बना देता है। वो कौन से कलिमात हैं जो आपके रिज़्क, आपकी सेहत और आपकी परेशानियों के बंद तालों की चाबी हैं।
इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी पावरफुल हिस्से में हम उसी इस्म आज़म और एटम बम वजीफ़े की तरफ बढ़ेंगे जो मशाइख़ इज़ाम ने गैबी नुसरत की चाबी करार दिया है। हम वो तरीक़ा सीखेंगे जिससे गैब से मदद के फरिश्ते उतरते हैं और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो इन बाबरकत अय्याम के सदक़े सीधी अल्लाह के हुजूर पेश होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां उसे कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, जहां हर तरफ से उसे नाकाम करार दे दिया गया हो, तो वो अल्लाह के वलियों के फैज़ान से कैसे अपनी झोली भर सकता है। दोस्तों, औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों का सबसे बड़ा निचोड़ और उनके फैज़ का सबसे बड़ा राज यकीन की ताकत है। अगर हम तमाम सलासिल तरीक़त, ख़ास तौर पर सिलसिले क़ादरिया और सिलसिले चिश्तिया की तालीमात पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि इन अजीम हस्तियों ने हमें असबाब से नज़र हटाकर मुसब्बबुल असबाब से जुड़ना सिखाया है। हुजूर गौसुस सकलैन, क़ुत्ब रब्बानी, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ की बारगाह में चलते हैं। सिलसिला क़ादरिया के बानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमात में फरमाते हैं कि ए इंसान, तू क्यों परेशान है? तो क्यों अपने जैसे मिट्टी के पुतलों के सामने हाथ फैलाता है? आप रहमतुल्लाह अलैह सिखाते थे कि जब दुनिया के तमाम सहारे टूट जाएं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी तदबीरें हार गई हैं, तो ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में और इन मुबारक रातों में अपने रब के सामने इस तरह हाजिर हो जाओ कि तुम्हारी अपनी कोई मर्जी बाकी ना रहे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान हमें ये बताता है कि अल्लाह इन दिनों में अपने बंदों की अना की कुर्बानी मांगता है। जब बंदा कहता है कि मौला, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत दौड़ भाग कर ली, मगर मैं कुछ ना कर सका, अब तू ही मेरा वकील बन जा, अब तू ही मेरा कारसाज बन जा, तो दोस्तों यकीन जानिए कि इसी लम्हे अर्श आज़म से गैबी मदद के फरिश्ते रवाना कर दिए जाते हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी तदबीर को अल्लाह के कदमों में ढेर कर देता है तो अल्लाह उसकी तकदीर को अपने हाथ में ले लेता है। फिर ज़रा सिलसिला आलिया चिश्तिया के इस दरवेश बेनवा की तरफ देखिए जिन्हें दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्र रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का ये मुस्तनद फैज़ है कि आप अपने मुरीदीन को सिखाते थे कि अल्लाह से उसका कर्म मांगना सीखो। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये 10 दिन अल्लाह की रहमत के ख़ास सैलाब के दिन हैं। जिस तरह एक किसान बंजर ज़मीन पर बारिश का इंतज़ार करता है, इसी तरह एक गुनहगार बंदे को इन रातों में अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करना चाहिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का निचोड़ ये है कि जब तुम ज़िलहिज्जा की इन रातों में मुसल्ले पर बैठते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जेब में क्या है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे रब के ख़जाने में क्या है। आप फरमाते थे कि जिसने इन रातों में सच्चे यकीन के साथ अल्लाह की समदियत पर भरोसा कर लिया, अल्लाह उसे वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से कायनात की अक्ल भी ख़त्म हो जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बारीक और लर्ज़ा खेज़ राज है जिसे पीर सियाल लजपाल हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर ताजदार गोलरा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगियों से साबित किया। इन हस्तियों ने हमें सिखाया कि गैब से मदद असबाब के मोहताज नहीं होती। भाइयों, अल्लाह के नामों में वो ताकत है कि अगर सच्चे यकीन से पुकारा जाए तो मुर्दा नसीब भी जाग उठते हैं। औलिया सिखाते कि जब दुनिया तुम पर ज़मीन तंग कर दे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो इन मुबारक रातों में अल्लाह के वकील होने पर ऐसा यकीन पैदा करो जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाते वक्त था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा था तो उनके पास कोई ज़ाहिरी हथियार नहीं था, सिर्फ यकीन का वो पहाड़ था जिसने आग के कवानीन को बदल कर रख दिया था। औलिया अल्लाह के दरबार से हमें यही सबक मिला है कि अल्लाह उन लोगों से हया फरमाता है जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके हो जाते हैं। आप फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि गैब से तुम्हारी मदद हो तो पहले अपने अंदर से गैर का डर निकाल दो। इन रातों में अल्लाह से उसकी यारी का वास्ता देकर मांगो। दोस्तों, ये यकीन की ताकत ही वो चीज़ है जो एक आम इंसान को वली बना देती है। जब आप ज़िलहिज्जा की इन रातों में जिक्र करते हैं तो आपका वो जिक्र सीधा उन हाजियों की पुकार से जुड़ जाता है जो इस वक्त अरफात के मैदान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कायनात में एक ऐसी रूहानी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है कि हर वो दुआ जो अल्लाह के वलियों के वसीले से मांगी जाए वो रद्द नहीं की जाती। मेरे भाइयों, वल्लाह यही सच है, यही हक है कि कायनात में एक ऐसी रूहानी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है कि हर वो दुआ जो अल्लाह के वलियों के वसीले से मांगी जाए
वो रद्द नहीं की जाती। भाइयों, आज सियालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जो सालों से हल नहीं हो रहा, अगर कोई ऐसी बंदिश है जिसने आपके रिस्क या आपकी औलाद के नसीब को जकड़ रखा है, तो इन मुबारक रातों को ज़ाय न होने दें। याद रखें, औलिया अल्लाह इन अय्याम में सिर्फ तस्बीह नहीं घुमाते थे, बल्कि वो अल्लाह की कुदरत के मुशाहदे में खो जाते थे। वो जानते थे कि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपनी सिफत अर्रज़्ज़ाक़ और अल-फ़त्ताह के साथ कायनात की तक़सीम कर रहा है। अब जबकि हमने औलिया अल्लाह के इस फैज़ और गैबी मदद की हकीकत को समझ लिया है, तो अब वो वक्त आ गया है जब हम इस निशिस्त के सबसे ताकतवर और एटम बम हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। वो कौन सा इस्म आज़म है जो इन 10 दिनों की किसी भी रात में, चाहे वो आज की रात हो या आने वाली कोई भी मुबारक घड़ी में 313 बार पढ़ लिया जाए तो वो नामुमकिन हाजतों को मुमकिन बना देता है। वो कौन से कलिमात हैं जो आपके रिस्क, आपकी सेहत और आपकी परेशानियों के बंद तालों की चाबी हैं? इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज्यादा अमली यानी प्रैक्टिकल हिस्से में हम इसी इस्म आज़म और एटम बम वजीफे की तरफ बढ़ेंगे जो पीर सियाल लचपाल और मशाइख़ आज़ाम ने गैबी नुसरत की चाबी करार दिया है। हम वो तरीक़ा सीखेंगे जिससे गैब से मदद के फरिश्ते उतरते हैं, और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो इन बाबरकत अय्याम के सदक़े सीधी अल्लाह के हुजूर पेश होगी। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक, क्योंकि अब आपकी झोली में वो खजाना आने वाला है जो आपकी ईद की खुशियों को 1000 गुना बढ़ा देगा। जी असद सियालवी साहब। मोहम्मद इस्माइल साहब, शुक्रिया। तो भाइयों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब मैं आपके हाथ में वो कुंजी देने जा रहा हूं जिसे कायनात विलायत में फ़तह मुबीन का परवाना कहा जाता है। दोस्तों, ये ज़िलहज्जा की मुबारक रातें कोई आम रातें नहीं हैं। इन रातों के बारे में मशाइख़ इज़ाम, ख़ास तौर पर हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दस सर्रहुल अज़ीज़ और ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का निचोड़ ये है कि ये वो वक्त है जब कायनात की रूहानी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। इन रातों में मांगी गई दुआ महज एक दरख्वास्त नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की बारगाह में एक ऐसा दस्तखत शुदा हुक्म बन जाती है जिसे फरिश्ते ज़मीन पर नाफिज करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज मैं आपको वो एटम बम वजीफ़ा देने जा रहा हूँ जो सीना बसीना औलिया अल्लाह से हम तक पहुँचा है। ये वो अमल है जिसके बारे में पीर सियाल लचपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मियाँ, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भंवर में फंस गई है, जब तुम्हें लगे कि अब डूबने के सिवा कोई रास्ता नहीं, तो फिर अपनी अकल के चप्पू छोड़ दो और अल्लाह के उस नाम का सहारा लो जो डूबती हुई कश्तियों को किनारे लगा देता है। वो वजीफ़ा और उसकी रूहानी ताकत को अपने दिल के कानों से सुनिए। आपने ज़िलहज्जा की इन मुबारक रातों में से किसी भी रात, ख़ास तौर पर इशा के बाद या तहज्जुद के वक्त, जब कायनात पर सुकूत तारी हो, ताज़ा वज़ू करके जाए नमाज पर बैठना है। अपने तमाम दुनियावी बोझ, तमाम फ़िक्रें और तमाम परेशानियां अपने जहन से निकाल कर ये तसव्वुर करना है कि या अल्लाह, मैं तेरे दरबार में एक ऐसा भिखारी हूँ जिसका तेरे सिवा कोई नहीं। सबसे पहले आपने 11 बार दरूद खिज़री पढ़ना है। दरूद खिज़री के अल्फाज ये हैं: सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम, यानी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद व सलाम हो। इसे दरूद खिज़री इसलिए कहा जाता है कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का महबूब दरूद है और इसमें वो रूहानी करंट छुपा है जो बंदे का कनेक्शन सीधा मदीना मुनव्वरा के सब्ज़ गुंबद से जोड़ देता है। और इसके बाद अब वो कलिमात पढ़ने हैं जिन्हें अल्लाह का इस्म आज़म कहा गया है। आपने 313 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो मेरे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ब व परेशानी के वक्त के लिए सिखाई थी। या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, यानी ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए पूरी कायनात को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तेरी फ़रियाद करता हूँ, तेरी मदद चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा इन कलिमात की गहराई और इनके आदद यानी 313 के राज को समझिए। आपने 313 बार ही क्यों पढ़ना है? रूहानियत के तालिब इल्म जानते हैं कि 313 वो अदद है जिसने ग़ज़वा बदर में बातिल के गुरूर को खाक में मिला दिया था।
یہ وہ عدد ہے جس کے پیچھے اللہ کی نصرت اور فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ جب آپ ان مبارک راتوں میں 313 بار یا حیو یا قیوم پکارتے ہیں تو آپ کائنات کی دو سب سے بڑی صفات کو حرکت میں لاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا حیو تو آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جس پر کبھی موت نہیں آتی، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میری یہ پریشانی تو فانی ہے، میرا یہ دشمن تو فانی ہے، لیکن تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب تو سلامت ہے تو میرا کام کیسے نہیں بنے گا؟ اور جب آپ کہتے ہیں یا قیوم تو آپ اس ہستی کو پکارتے ہیں جس نے زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو تھام رکھا ہے، جس رب نے اربوں کہکشاؤں کو تھام رکھا ہے۔ کیا وہ آپ کے گرتے ہوئے باروبار کو نہیں تھام سکتا؟ کیا وہ آپ کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو نہیں تھام سکتا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم وہ کلمہ ہے جو زبان سے نہیں بلکہ یقین سے ادا ہو۔ آپ سکھاتے تھے کہ جب انسان برحمتک استغیث کہتا ہے تو وہ اللہ کو اس کی سب سے پیاری صفت یعنی رحمت کا واسطہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، اس نے اپنی ہمت ہار دی ہے اور میری رحمت کا دامن تھام لیا ہے، اب اس کی وکالت میں خود کروں گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت کے درباروں سے ہمیں یہ مستند فیض ملا ہے کہ ان 10 دنوں کی راتوں میں یہ وظیفہ بند نصیبوں کا تالا کھولنے کی چابی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ کلمات ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو ساحل مراد تک پہنچا دیتے ہیں۔ چاہے آپ کا مسئلہ رزق کا ہو، اولاد کا ہو، بیماری کا ہو یا کسی سخت جادو اور بندش کا، ذی الحجہ کی ان راتوں میں اس 313 بار کے ورد کی برکت سے اللہ غیب سے وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتے۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا یہ روحانی ہتھیار ہے۔ ایک طرف مکہ میں حاجیوں کی صدائیں ہیں اور دوسری طرف آپ کی یہ 313 بار کی تڑپتی ہوئی پکار۔ اللہ کی قسم، یہ پکار عرش کے پردے چیر دیتی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 بار وہی درود خضری پڑھنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلانا ہے جیسے کوئی فقیر کسی سخی کے در پر جھولی پھیلاتا ہے۔ پیر سیال فرماتے تھے کہ اس وقت اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جب اللہ اپنے یاروں کے صدقے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ عزیز سامعین، ہم نے ان مبارک ایام کی فضیلت بھی جان لی، اللہ کی یاری کا راز بھی سمجھ لیا اور یہ ایٹم بم وظیفہ بھی حاصل کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان 10 راتوں کی اپنی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے ان راتوں میں ایسی کیا چیز چھپا رکھی ہے کہ ان کی ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر قرار دی گئی ہے؟ دوستو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی سورہ الفجر کی پہلی 2 آیات کی گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان میں اس کا روح پرور ترجمہ فرماتے ہیں، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ ذرا رک جائیے اور اس قسم کی ہیبت کو محسوس کیجیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کائنات کا مالک جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جسے کسی بات پر گواہ لانے کی ضرورت نہیں، وہ جب اپنے کلام میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ بھائیو، واللہ یہی سچ ہے اللہ کہ وہ چیز اس کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ میرے صاحبو، یہاں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی یہی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اب یہاں ایک لرزہ خیز نقطہ سمجھیے۔ ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تڑپ رکھتے ہیں، ہم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، یہ راتیں بھی کسی لیلۃ القدر سے کم نہیں ہیں۔ ان کی ہر گھڑی، ان کا ہر پل اور ان کا ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت کے خاص نور سے بھرا ہوا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا خلیفہ پیر سیال لجپال پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے نچوڑ کا باریک نقطہ کہ اللہ جب کسی وقت کی قسم کھاتا ہے تو وہ دراصل اس وقت کے اندر چھپے ہوئے خزانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس طرح شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے نصیب جگاتا ہے جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی یہ نشست ہمیں ایک بہت بڑی غفلت سے بیدار کرنے آئی ہے۔ ہم ان راتوں کو صرف عام راتیں سمجھ کر سو جاتے ہیں،
हम समझते हैं कि ईद आएगी तो कुर्बानी कर लेंगे, बस यही ज़िलहज्जा है। लेकिन अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मियाँ, इन रातों को सोने में ज़ाया मत करो। ये वो रातें हैं जब अल्लाह से अपनी तकदीर दोबारा लिखवाई जा सकती है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू और मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया के दरबारों से भी हमें यही फैज़ मिला है कि अल्लाह इन रातों में अपने बंदों को पुकारता है कि ए वो शख्स जो कर्ज के बोझ तले दबा है, ए वो माँ जो अपनी बेटी के नसीब के लिए रो रही है, ए वो जवान जो नौकरी के लिए परेशान है, देख मैंने इन रातों की कसम खाई है, आजा मेरे दर पर और अपनी मर्जी के फैसले करवा ले। ज़रा सोचिए कितना बड़ा ये रूहानी इनाम है कि एक तरफ हाजी मिना की वादियों में अल्लाह की कस्में याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने घर में बैठे इन 10 रातों की बरकत समेट रहे हैं। इन रातों का सबसे बड़ा राज ये है कि इनकी एक घड़ी की इबादत आम दिनों के सालों की इबादत पर भारी है। आज सियालवी कीरी के नाजरीन को मैं ये वसीयत करना चाहता हूँ कि अपने बिस्तरों की लज्जत को इन 10 रातों के लिए थोड़ा कम कर दें। ये 10 रातें दोबारा पलट कर नहीं आएंगी। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा मसला, वो सबसे बड़ी उलझन जिसे आप नामुमकिन समझ रहे हैं, अल्लाह ने उसका हल इन 10 रातों में से किसी एक रात के एक सजदे में रखा हो। औलियाए अल्लाह इन रातों में बेदारी का ख़ास एहतिमाम फरमाते थे। आप फरमाते थे कि जिसने इन रातों को गफलत में गुजार दिया, उसने दरअसल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सेल को ज़ाया कर दिया। ये वो वक्त है जब रहमत इलाही जज बनकर नहीं बल्कि यार बनकर नवाज रही होती है, जैसा कि हमने औलिया के कौल में सुना। दोस्तों, ये 5वां राज हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह से मायूस होना गुनाह है। जब वो खुद इन रातों की कसम खा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बहुत बड़ा अता करने वाला है। अपनी झोलियों को फैला लें, अपनी नियतों को साफ कर लें और आज की रात अल्लाह से वो मांग लें जो अब तक किसी ने नहीं मांगा। अजीज सामईन, हमने इन मुबारक दिनों की फजीलत भी जान ली, अल्लाह की यारी का राज भी समझ लिया, गैबी मदद के वाक़यात भी सुन लिए और वो एटम बम वजीफ़ा भी हासिल कर लिया। अब जबकि इस 12वीं नशिस्त का बिल्कुल आखिरी वक्त आ पहुंचा है, तो अब हम इस महफिल को समेटेंगे। इंशाअल्लाह अब हम इस पूरी नशिस्त का वो निचोड़ पेश करेंगे जो आपकी रूह के लिए एक हतमी पैगाम होगा, और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो औलियाए अल्लाह का तरीक़ा है, ताकि हमारे ये मुरझाए हुए नसीब खुल उठें, हमारी तमाम बंदिशें टूट जाएं और ये ईद हमारे लिए अल्लाह के कुर्ब का परवाना बन जाए। आइए अपने दिलों को हाजिर कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस दरबार में इल्तिजा करने जा रहे हैं जहां अस्समी और अल मुजीब रब हमारी सिस्कियों का मुंतज़िर है। जी जनाब सियालवी साहब। आली जाह, वल्लाह हक है। आज जुल्हज्जा की इन मुबारक घड़ियों में होने वाली हमारी ये नशिस्त अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आज हमने इन 10 दिनों और रातों के वो राज समेटे हैं जो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी हैं। हमने उलूहियत के खिंचाव को समझा, हमने अल्लाह की यारी के अनोखे ढंग देखे, हमने औलिया अल्लाह के दरबारों से मिलने वाली गैबी नुसरत के वाक़यात सुने, और हमने वो एटम बम वजीफ़ा यानी या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीफ़ भी हासिल कर लिया जो बंद नसीबों को जगा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गुफ्तगू का निचोड़ और मेरा आखिरी पैगाम आपके लिए सिर्फ इतना है कि अपनी ज़िंदगी की महरूमियों पर रोना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास माल नहीं है, मेरी जेब खाली है या मैं मक्का नहीं जा सका, बल्कि इस बात पर खुश होइए कि कायनात के मालिक ने आपको ये दिन नसीब फरमा दिए हैं। उसने आपको ये सांसें दे दी हैं कि आप इन मुबारक रातों में एक बार सुभान अल्लाह कह सकें, एक बार उसके हुजूर सजदा कर सकें। याद रखिए, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये है कि वो आपको अपनी याद की तौफीक दे दे। जिसको जिक्र की तौफीक मिल गई, समझो उसे कायनात का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। औलिया फरमाया करते कि फ़कीर वो नहीं जिसके पास माल ना हो, फ़कीर वो है जिसके दिल में यार की याद ना हो। आज अगर आपका दिल तड़प रहा है तो आप गनी हैं, आप बादशाह हैं। अपनी इस तड़प की कदर कीजिए और इन बची हुई रातों को गफलत की नींद में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि इनमें अल्लाह से अपनी तकदीर लिखवाइए, क्योंकि इन रातों में कलम कुदरत आपकी ज़ुबान की जुम्बिश का मुंतज़िर है। आइए अब इस पूरी सीरीज़ और इन बाबरकत अय्याम के अनवार के साए में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए और अपनी झोलियों को फैलाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो इल्तिजा करते हैं जो अर्श के पाए हिला देती है।
अपने दिलों को हाजिर कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और कायनात के तमाम सहारों से नज़र हटाकर सिर्फ उस एक अल-वकील रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम। ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए गरीबों के वाली, ए बेकसों के मददगार, हम तेरे आजिज़, मिस्कीन और गुनाहगार बंदे तेरे हुजूर हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारे दामन गुनाहों से भरे हैं, हमारे चेहरे नदामत से झुके हैं, लेकिन हमारा ईमान तेरी रहमत पर बहुत बड़ा है। या बारी ताला, हम तुझे इन 10 रातों का वास्ता देकर सवाल करते हैं। हम तुझे तेरे इन नामों का वसीला देते हैं जिनकी तूने हमें मारिफत अता फरमाई। या अल्लाह, हम तुझे तेरे सबसे प्यारे महबूब सैयदना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का वास्ता देते हैं। मौला, हम तुझे तेरे वलियों, तेरे आशिकों, हुजूर औसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी, दाता गंज बख्श अली हजवी, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, मखदूम साबिर पाक, हुजूर ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब और हमारे पीर व मुर्शिद कुतुबुल अख्ताब पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन की निस्बतों का वसीला देकर अर्ज करते हैं। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मौला, हमें रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वासे और रिज़्क़ बाबरकत अता फरमा। जो भाई और बहनें रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में फाक़े हैं, या अल्लाह, इन 10 दिनों के सदक़े उनके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। उन्हें किसी गैर का मोहताज न कर, उनके कर्ज़ों के पहाड़ अपनी रहमत से उतार दे। या शाफ़ी मुतलिक, जो लोग बीमार हैं, हस्पतालों में पड़े हैं, जिनके घरों में बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं, या अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा, उनकी तकलीफ़ों को राहतों में बदल दे। या रब, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली वो ज़िंदगी दे जिसमें हम तेरी जी भर कर बंदगी कर सकें। ए तौबा कबूल करने वाले रब, हमारी बख्शिश फरमा दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके नाम आज की रात जहन्नुम की लिस्ट से काट कर जन्नत के रजिस्टर में लिख दिए गए हैं। या अल्लाह, हमें निफाक से बचा, हमें हसद से बचा, हमें तकब्बुर से बचा और हमें वो आजिज़ी अता फरमा जो तुझे पसंद है। या रब्बुल आलमीन, सियालवी टीवी के जितने भी नाज़रीन और सामईन इस वक्त आमीन कह रहे हैं, उनके दिलों में जो भी जायज़ मुरादें हैं, जो भी हाजतें हैं, या अल्लाह, इन मुबारक घड़ियों के सदक़े उनकी झोलियाँ भर दे। जिनकी बेटियों और बेटों के रिश्तों में बंदिशें हैं, मौला, वो तमाम रुकावटें दूर फरमाकर गैब से उनके नसीब खोल दे। हमारे घरों को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना दे। ए हमारे मालिक, हमें ईमान की मौत नसीब फरमाना। जब वो वक्त आए कि दुनिया के तमाम सहारे छूट जाएं, तो मौला, तू हमें तन्हा न छोड़ना। हमें कब्र की वहशत से बचाना और रोज़े महशर अपने प्यारे हबीब सैयदना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह अता फरमाना और उनके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने की सआदत अता फरमाना। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ दोस्तों, ये था ज़ुल्हज्जा की इन मुबारक रातों का तोहफ़ा। इस 313 बार के वजीफ़े को इन रातों में हरगिज़ न छोड़िएगा और अपने इस भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान असद अली सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।